हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच मैथ्स। लास्ट वीडियो रे हमें 13 बी रा एक्सरसाइज 13 बी रा नंबर 11 पर्यंत सॉल्व कर देछंती। ना एबे स्टार्ट करिवा नंबर 12। तो नंबर 12 टा बोर्ड एग्जाम पे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Number 12, a variable plane is at a constant distance p. So distance p from the origin, well, distance from origin to the plane equal to हमको given देची p, and meets the axis at a b c. तो plane meets the axis at a point, b point, c point. X axis, y axis, z axis. Suppose this one number of plane meets the x axis at a. तो a point रे meet करला, let नेगली this coordinate भी a, 0, 0. Plane meets the y axis at b. तो this coordinate 0, b, 0. Plane meets the z axis at c. तो c coordinate 0, 0, c. तो हमको already given the distance of the plane from the origin equal to p. ये origin अच्छी origin 0, 0, 0. The distance of the plane from the origin, ये distance ने मते p given देची, let this one ला q, तो OQ distance equal to p given देची, then कौन देची ना through ABC, तो A point, B point, C point अच्छी ना, through ABC planes are drawn parallel to the coordinate planes, ये तो हमें solve करने को use करीबा, then they show that the locus of point of intersection is 1 by x, 1 by y square, 1 by z square equal to 1 by p square. 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equal to 1 by p square. The question actually देखा three parts अच्छी. The distance p from the origin. ये distance given देची la first part. Then through ABC planes are drawn parallel to the coordinate axis. The last part is locus of the point of intersection. Locus of point of intersection. तो हमें 1 by 1 solve करियो, देखिए हमारा result 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equal to 1 by p square ही end up। तो start करियो, let the plane meet the x axis, y axis and z axis at a 0, 0, a 0, 0, b 0, b 0 and c 0, 0, c. So let nature plane meets the x axis at a 0, 0, b 0, b 0 and c 0, 0, c. Then the equation of plane is x by a plus y by b plus z by c. तो मु यूज कर ली इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये ला इक्वेशन नंबर 1। तो एक्चुअली करना ये डिस्टेंस हमारा a अच्छी, तो x इंटरसेप्ट इक्वल टू a अच्छी, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b, ये डिस्टेंस b अच्छी मैंने y इंटरसेप्ट इक्वल टू b अच्छी, ये डिस्टेंस c अच्छी, तो z इंटरसेप्ट, तो हम पाखरे x इंटरसेप्ट इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b, z इंटरसेप्ट इक्वल टू c अच्छी, तो मु यूज कर ली इक्वेशन x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1। और भी हमें तो एमती एक्सप्रेस कर देवा 1 by a into x plus 1 by b into y plus 1 by c into z minus 1 equal to 0। तो एमती एक्सप्रेस करले करना मु डिस्टेंस फार्मूला यूज करला हमको टिके हेल्प करिवो। तो हमरा फर्स्ट पार्ट ला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू p गिवन देछि, तो given that p equal to perpendicular distance from the origin to the plane, तो given that p equal to perpendicular distance from origin to the plane, then distance formula apply करिबा, तो this implies p equal to perpendicular distance, point अच्छी plane अच्छी, distance formula mod 1 by a into x 0 plus 1 by b into 0 plus 1 by c into 0 minus 1
divided by root over of 1 by a square plus 1 by b रो whole square plus 1 by c रो whole square. मो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करछि. हमर डिस्टेंस फार्मूला थिला ax1 plus by1 plus cz1 plus d by root over of a square plus b square plus c square. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करछि. डिस्टेंस फार्मूला माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन रो फार्मूला. तो दिस इक्वल्स टू 0 0 0 छी तो -1 divided by root over of 1 by a square 1 by b square 1 by c square. तो नेक्स्ट स्टेप is squaring both sides. तो स्क्वेयरिंग कले तो p square equal to this रो स्क्वायर अछि -1 रो स्क्वायर equal to 1 और this रो स्क्वायर equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. तो रूट ओवर अछि स्क्वेयरिंग हेगला सिंप्लीफाई हे कि तुमको मिलि छिबा 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. तो दिस implies 1 by p square रेसिप्रोकल कले तो equals to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. तो এটা इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देली. तो मु फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस p यूज करले मते मिलला 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. तो नेक्स्ट पार्ट लगाना इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a b c. तो मते इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a b c पॉइंट्स मते बे बाहर करियर अछि. द इक्वेशन ऑफ planes passing through the points A, B and C and parallel to the coordinate planes are x equal to a, y equal to b, z equal to c. तो एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट. ये प्लेन केमती आसिला एला लेट x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस. तो ये पॉइंट ला मोरो a पॉइंट a00 ठीक अछि. a पॉइंट a00 तो ये ला मोरो yz प्लेन रो इक्वेशन थिला हमरो x equal to 0 x equal 0 yz प्लेन रो इक्वेशन थिला x equal 0. सपोज मोर ये पॉइंट रे प्लेन पास कला एमती पास करिवो तो ये प्लेन डेफिनेटली पैरेलल हबो. तो ये प्लेन रो इक्वेशन आसीबो x equal to a. यार इक्वेशन x equal to 0 तो यार इक्वेशन x equal to a. तो the plane passing through the point a00 and parallel to yz plane is x equal to a. तो मते मिलला x equal to a. सेम थी लेट येला y एक्सिस अछि तो ये पॉइंट ला b पॉइंट 0 b0. सपोज मोर प्लेन पास कला पॉइंट रे तो ये प्लेन टा करना पैरेलल टू x एंड z xz प्लेन अछि मेरे तारा इक्वेशन y इक्वल टू 0. तो ये प्लेन रो इक्वेशन आसीबो y इक्वल टू b. सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट. देन थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट c00 तो एटी पास करिवो बट ये ला हमरो xy प्लेन अछि xy प्लेन रो इक्वेशन ला z इक्वल 0. तो ये डिस्टेंस हमरो c अछि तो ये प्लेन रो इक्वेशन आसीबो z इक्वल टू c. तो ये डिस्टेंस a अछि तो x इक्वल a, ये डिस्टेंस b अछि तो y इक्वल टू b, ये डिस्टेंस c अछि तो ये ला z इक्वल टू c. तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a00 and parallel to yz plane is x equal to a. Same thing plane passing through the point B and parallel to xz plane अछि तो y equal to b. Plane passing through the point C and parallel to xy plane अछि तो यार इक्वेशन z equal to c. तो ये प्लेन टा ठीक से यदि बुझियला तापरे नेक्स्ट स्टेप हमको इजी हे जीवो. तो हमरो डिस्टेंस यूज हे गला प्लेन्स में गला पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a b c. देन तार पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो मते x इक्वल टू y इक्वल टू b z इक्वल टू c ये थ्री प्लेन्स रा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टा मते बे फाइंड करियर अछि. तो नेक्स्ट पार्ट ला the point of intersection of planes
x equal to a, y equal to b, z equal to c is a b c। तो ये पॉइंट केमती हमें फाइंड करे सी भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। ये इक्वेशन थिला x इक्वल टू a, दिस वन थिला y इक्वल टू b, ये थिला z इक्वल c। तो ये प्लेन रो इंटरसेक्शन ला a पार्ट टा, तो हमारा कॉमन पॉइंट है डेफिनेटली a b c s वो। ये डिस्टेंस a अछि तो ये डिस्टेंस a अछि तो ये पॉइंट a मिलला x कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस y अछि तो ये डिस्टेंस y थी वो, तो यार y कोऑर्डिनेट b मिलला, ये डिस्टेंस c अछि तो ये डिस्टेंस c अछि तो ये डिस्टेंस c थी वो, तो यार पॉइंट मिलला z इक्वल टू c। तो हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलला तो सेटा a b c ही मिली ऑलवेज, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू c रा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलला a b c। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बट हमारा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करियर अछि। देयरफॉर the locus of point of intersection is obtained by putting a equal to x, b equal to y and c equal to z in equation 2. Hence, the required locus is तो मतलब x a equal to x, b equal to y, c equal to z equation 2 रे पुट करियर अछि। तो locus is 1 by p square equal to 1 by a equal to x पुट कर ली तो x square, p equal to y पुट कर ली तो 1 by y square, c equal to z पुट कर ली तो 1 by c square। तो आंसर सिगला 1 by p square equal to 1 by x square plus 1 by b y square plus 1 by c square और 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by c square equal to 1 by p square। तो एठी भी तुम एंड करि परिबो। तो केबे केबे देखिबो एग्जाम रे ए क्वेश्चन रा तो केबे केबे तुमको एमटी भी देथिबो x to the power -2 y to the power -2 z to the power -2 equals to 1 by p square और p to the power -2। तो केबे केबे हमको x to the power -2 y to the power -2 z to the power -2 equal to p to the power -2 भी देथिबो। तो तुम जोठी प्रूफ थिबो तुमे सेठी एंड करिवो। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो 3 पार्ट थिला, डिस्टेंस थिला, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स एबीसी थिला, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनटा पार्ट को तुमे 1 by 1 सॉल्व कर देबो, तुम्हारा एंड आंसर से जीवा लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर 12 नंबर पाखापाखि सेम टाइप रो अछि। 13 टिके इजी हबो 12 रो। ए वेरिएबल प्लेन passes through a fixed point ABC, the plane passing through the point ABC, a given condition, and meets the coordinate axis at ABC. Passes through the point ABC achi, meets the coordinate axis at capital A, capital B, capital C. Show that the locus of the point common to the planes drawn through ABC and parallel to the coordinate planes is A by x, B by y plus C by z equal to 1. लास्ट क्वेश्चन इक्वेशन पाखापाखि सेम टाइप रो अछि, तुमे इजीली सॉल्व कर दो। 12 हे गला तो 13 भी तुमे इजीली सॉल्व कर दबो। तो स्टार्ट करिबा सॉल्यूशन। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये प्लेन अछि p फॉर द प्लेन। तो एठी मते गिवन कोन देछि ना प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। तो प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC यदि एठी ABC देछि मो ए डिस्टेंस a यूज करिबेनी, मो अल्फा यूज करले तो मते a पॉइंट मिलि गला अल्फा 0 0। तो ये ओरिजिन अछि तो ये डिस्टेंस मु बीटा यूज करले ये पॉइंट मिलि गला 0 बीटा 0। तो ये डिस्टेंस मु गामा यूज करले तो मते c पॉइंट मिलि गला 0 0 गामा।
तो हमको x इंटरसेप्ट अल्फा मिलला, x इंटरसेप्ट इक्वल टू अल्फा, y इंटरसेप्ट इक्वल टू बीटा, z इंटरसेप्ट इक्वल टू गामा मिलगला। तो अगेन लेट नहीं जीवा, लेट द प्लेन meet the x axis, y axis and z axis at a alpha 0 0, b 0 beta 0 and c 0 0 gamma. Then the equation of plane is मतलब इंटरसेप्ट मिलेगा अल्फा बीटा गामा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1। तो मोर प्लेन इक्वेशन मतलब मिलगला। बट गिवन देछि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC, एटा मोर फर्स्ट कंडीशन गिवन देछि। सिंस द प्लेन passing through the point A B C, तो ये कोऑर्डिनेटर डेफिनेटली प्लेन इक्वेशन को सैटिस्फाई करिवो। तो हमें x प्लस रे a, y प्लस रे b, z प्लस रे c पुट कर दवा। तो दिस इंप्लाइज मते मिलना a बाय अल्फा प्लस y प्लस रे मु b पुट कली, b बाय बीटा, z प्लस रे c यूज कली, c बाय गामा इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देली। तो नेक्स्ट स्टेप रे प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी हमें फाइंड कर दी। 12th में देखी छो तो 13th तुमको किसी भी डिफिकल्ट लगी बनी। द इक्वेशन ऑफ प्लेन planes through the points A, B and C and parallel to the coordinate planes. Coordinate planes are x equal to alpha, यानी अल्फा रे पास करूची माने x equal to alpha, बीटा रे पास करूची तो y equal to बीटा, गामा रे पास करूची तो z equal to गामा। तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स मिलला x equal to alpha, y equal to बीटा, z equal to गामा। बट यार हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बाहर करे छी। तो 12 रे मु तुमको ऑलरेडी देखी दी छी, 13 रे भी एग्जैक्टली सेम थी होबो। The point of intersection of planes x equal to alpha, y equals to beta and z equal to gamma is alpha, beta, gamma। तो x ए रे पास कला x इक्वल टू अल्फा, b रे पास कला y इक्वल टू बीटा, c रे पास कला z इक्वल टू गामा। तो तार इंटरसेक्शन है डेफिनेटली हमको मिलिबो अल्फा बीटा गामा। तो 12 रे मु एक्सप्लेन कर देछि। तो तुम जदी न बुझी परियो 12 आउथर देखिबो तो डेफिनेटली बुझिबो तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलला अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट पार्ट हमको लोकस फाइंड करे छी ताकि मु पॉइंट यूज कली, देन प्लेन पास कला एबीसी, देन मते मिली गला कॉमन पॉइंट। तो तार कॉमन पॉइंट मिली गला मते अल्फा बीटा गामा। तो बस मते तार लोकस टा फाइंड करे छी। देयरफॉर द locus of point of intersection is obtained by putting अल्फा इक्वल टू, तो हमर एठी अल्फा अछि तो अल्फा इक्वल टू x पुट करिवा, बीटा इक्वल टू y पुट करिवा, गामा इक्वल्स टू z पुट कर दवा इन इक्वेशन 2। बस मु 2 रे पुट कले तो मते a by x मिलला
प्लस b बाई y मिलला प्लस c बाई z इक्वल्स टू 1 मिलला। तो a बाई x b बाई y प्लस c बाई z इक्वल्स टू 1। तो हमारा रिक्वायर्ड थिला बस a बाई x प्लस b बाई y प्लस c बाई z इक्वल टू 1। तो इजी जदि तुम 12 बुझी नब तो 13 तुमको बहुत इजी लागिवो। तो आगे 12 करिवो तापरे 13 देखले तुमको डेफिनेटली इजी लागिवो। Next question number 14. The plane 4x plus 7y plus 4z plus 81 equals to 0. First plane mate given dechi is rotated through a right angle about its line of intersection with the plane 5x plus 3y plus 10z minus 25 equals to 0. Find the equation of plane in new position. मोर first plane मते first plane p1 ये suppose मोर p2 अछि this one p1 given देछि मते प्लेन टाइप रोटेट करियर अछि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट कली तो मोर जो न्यू प्लेन आसिला दिस वाला मोर रिक्वायर्ड प्लेन p। तो एटा मते एक्चुअली फाइंड करे छी बट गिवन देछि हमें केमती रोटेट कले 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट हे गला मु स्ट्रेट लाइन ड्रा करछि। तो एग्जाम रे तो डायग्राम दरकार नै करिवा। तो तुम्हें प्लेन ड्रा करि परियो प्लेन ड्रा कले ठीक लागिवनी तो मु स्ट्रेट लाइन रे तुमको एक्सप्लेन कर देबी। सपोज एटा मोर प्लेन 2 अछि एटा प्लेन 1 अछि याकु मु रोटेट कर देली 90 डिग्री। तो न्यू पोजीशन रे जो प्लेन मिलला p मते यारा ही इक्वेशन एबे फाइंड करियर अछि। तो एंगल अछि 90 डिग्री सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट कंडीशन। तो स्टार्ट करियो सॉल्यूशन। p1 let p1 be the first plane 4x plus 7y plus 4z plus 81 equals to 0। तो मु फर्स्ट प्लेन को p1 ले छी। सेकंड प्लेन p2 5x plus 3y plus 10z minus 25 equals to 0। तो मु सेकंड प्लेन फर्स्ट प्लेन p1 p2 को नहीं गली बस एटा को मते रोटेट करिवे 90 डिग्री जो पोजीशन रसे मते सेही प्लेन रो इक्वेशन एबे फाइंड करियर अछि। तो ये प्लेन इक्वेशन टा केमती ना p1 और p2 रो इंटरसेक्शन रे पास करछि। तो तुमे फैमिली ऑफ प्लेन्स डेफिनेटली यूज करि परिबो p1 प्लस लैम्डा p2 ताको यूज करि के हमें इक्वेशन ऑफ p फाइंड करिबा। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन in new position be p1 plus lambda p2 equals to 0। तो हमें फैमिली ऑफ प्लेन्स कौन पे यूज कर लेना एक्चुअली हम रिक्वायर्ड प्लेन टा एक इंटरसेक्शन ऑफ p1 एंड p2 तारा इंटरसेक्शन नहीं पास करिवा। तो p1 तो हम गिवन देछि 4x plus 7y plus 4z plus 81 प्लस लैम्डा इनटू मते मिलला सेकंड प्लेन अछि 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा तुम्हें मल्टीप्लाई करिवो 5 लैम्डा ये 4 अछि x तुम्हें कॉमन नै जीवो 4 प्लस 5 लैम्डा इनटू x। तो तुम्हें आगे मल्टीप्लिकेशन करिवो देन कॉमन नबो 7 अछि प्लस 7 तो एटा मल्टीप्लिकेशन हे गेले 3 लैम्डा इनटू y अछि जीवो 4z अछि तो प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन कले 10 लैम्डा इनटू z थीबो मु मल्टीप्लिकेशन करिके एकथरे कॉमन नै जाउछि प्लस 81 माइनस 25 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हमर एटा ही इक्वेशन एटा आंसर अछि बट लैम्डा अननोन अछि। तो लैम्डा फाइंड करे पे हम पाखरे गोटे कंडीशन अछि करना एंगल बिटवीन p एंड p1 ला 90 डिग्री त हमने में परपेंडिकुलर कंडीशन एठी यूज करि परिबा। यदि परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिबा त हमको देखिबो लैम्डा मिलिबो लैम्डा मिलले हमरो रिक्वायर्ड प्लेन रो इक्वेशन भी आस्तिबो। तो नेक्स्ट direction ratios of the normal n। तो required plane normal n to the plane p r। तो direction ratios x y z रो coefficient 7 plus 3 lambda 4 plus 10 lambda। Then find the direction ratios
of the normal n1 यूज करेगा ना मोर प्लेन 1 रो नॉर्मल 1 यूज कर टू द प्लेन p1 r तो फर्स्ट प्लेन 4x plus 7y plus 4z plus 81 अच्छी तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो 4 7 and 4 अच्छी तो मते बोथ रो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो मिल गला सिंस p perpendicular to p1 p perpendicular to p1 अच्छी तो यूजिंग perpendicular condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 ये फॉर्मूला में यूज करी परिबा कने ऑलरेडी परपेंडिकुलर अछि तो a1 a2 कहला माने 4 into 4 plus 5 lambda plus 7 into 7 plus 3 lambda plus 4 into 4 plus 10 lambda equals to 0 then multiplication करी 16 plus 20 lambda plus 49 plus 21 lambda plus 16 plus 40 lambda equals to 0. 40, 20, 60, ये 21, 81 lambda, 49, ये 32, तो 51, 381 equals to 0. तो this implies lambda equals to हमको मिलना -1. तो lambda मिल गया मैंने मोरो equation of required plane भी आसीबो. Therefore, the equation of plane in new position is कोटे पुट करिबा एटी भी यूज करि परिबा एटी भी यूज करि परिबा तो lambda equal to -1 एटी यूज कर दोछि तो 4 minus 5 into x lambda -1 यूज करछि -1 एटी -1 यूज करिबा 7 minus 3 into y then 4 minus 10 into z plus 81 minus 1 यूज कर ले plus 25 equals to 0 तो implies that minus x plus 4y minus 6z plus 106 equals to 0 और x minus 4y plus 6z minus 106 equals to 0 तो मते आंसर मिलना इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन बहुत इजी तो बस खाली तुमको फैमिली ऑफ प्लेन्स रे फार्मूला अप्लाई करियर अछि और परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करी लैम्डा फाइंड करिवो देन आंसर आसीबो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन फिफ्टीन नंबर द प्लेन LX plus MY equal to 0 is rotated about its line of intersection with the plane z equal to 0 through angle measure alpha prove that the equation of the plane in new position is Lx plus My plus this into z equal to 0 plus minus अच्छी plus minus this into z equal to 0 तो 15 नंबर 14 नंबर रे बेसिक किछि डिफरेंस नै एटी प्रूफ करे पे देछि सेठी हमको फाइंड करथिला बट हमरो मेथड प्राय सेम रहइबो तो एठी करना एंगल हमको अल्फा देछि सेठी एंगल ना 90 डिग्री थिला तो 90 डिग्री थिला बोले हमें करना परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करी के लैम्डा बाहर कर देथले बट एठी हमें तो परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिबनी हमें एंगल फार्मूला यूज करी के प्रूफ करिबा बट मेथड प्राय सेम रहइबो सॉल्यूशन let this one la p2 equation अच्छी L let p1 equation z equal to p1 la Lx plus my equals to 0 and p2 equation z equal to 0 this one la z equal to 0 तो हमारा p1 अच्छी बस याकू में हमते रोटेट कर लिए थ्रू एन एंगल अल्फा मते अल्फा एंगल रोटेट करछि तो दिस एंगल इक्वल टू मते अल्फा मिल रहा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन हमको बाहर करे छी तो माने ए प्लेन रो ही इक्वेशन हमको दरकार तो यार इक्वेशन के एमती बाहर करिवा 14 नंबर जेमती करथिले प्राय सेमती ही हबो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन in new position be p1 plus lambda into p2 equals to 0 तो
तो आम यूज करिबा सेम फैमिली ऑफ प्लेन्स रो फॉर्मूला। तो p1 नेछि lx प्लस my प्लस लैम्डा इनटू z इक्वल्स टू 0। तो हमर इक्वेशन आसीला जे बट लैम्डा जो पंत मिलिनी से पंत कंप्लीट हेनी। तो लैम्डा सेठी हमें करना परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करी बाहर करले। एबे हमें यूज केमती करबा ना एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू अल्फा। तो एंगल मते यूज करे अछि तो बोथ रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो भी दरकार। देन डायरेक्शन रेशियोस direction ratios of normal n to the plane p are तो direction ratios of normal n to the plane p। तो p रो normal direction ratio l m lambda l m lambda। then direction ratios of normal n1 to the plane p1। तो p1 रो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवा। और तो p1 तो अछि l m z रो कोएफिशिएंट नाही माने तुमे 0 ही चूज करिवा l m एंड 0। तो बोथ नॉर्मल्स रो डायरेक्शन रेशियो मिल गेला। तो हमको गिवन देछि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू अल्फा। तो यूजिंग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो cos अल्फा इक्वल टू फार्मूला थिला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फार्मूला इनटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू a1 a2 l into l प्लस m into m प्लस lambda into 0 divided by root over of l square plus m square plus n square lambda square l square plus m square plus lambda square into root over of l square plus m square plus 0 square l square plus m square plus 0 square तो 0। तो this equals to l square plus m square divided by root over of l square plus m square plus lambda square into मिलला root over of l square plus m square। तो ये तो पावर 1 अछि तो पावर हाफ अछि सिंप्लिफिकेशन हे जेबो सिंप्लिफिकेशन हे गेले मिलला root over of l square plus m square divided by root over of l square plus m square plus lambda square। यदि न बुझिएला मोटे सिंपल एग्जांपल को यदि x by root x अछि तो एको सिंप्लिफिकेशन कले root x ही आसीबो। तो तुमे 1 minus half कला माने हाफ ही मिलिबो माने root x है तार आंसर। ये मते cos अल्फा मिलि गेला बट हमको लैम्डा दरकार। तो लैम्डा में कोन करिबा न स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देली cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो यार एटू हमें केमते लैम्डा फाइंड करिबा न यार रेसिप्रोकल कर दबा 1 by cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स यार रेसिप्रोकल कले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नाउ 1 by cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। तो इटी डिवाइड कर दबा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर अल्फा ये तो कैंसिल है जीवो इधर 1 अच्छी लेफ्ट को शिफ्ट कर ले -1 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक अच्छी नाउ sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो तुमरे यूज हो tan स्क्वायर अल्फा तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दो छी तो इनटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू मिलला लैम्डा स्क्वायर। बट हमको लैम्डा फाइंड करियर अछि देन इक्वेशन रे भी हमको प्रूफ करियर अछि। implies that lambda equals to root over of tan square alpha into l square plus m square। तो सिंप्लीफिकेशन करिए ये प्लस माइनस tan alpha
इंटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो मते लैम्बडा रो वैल्यू मिली गला तो लैम्बडा कोठी पुट करिवा ना इक्वेशन 1 रे पुट करिवा देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन in new position is Lx plus My plus lambda. Lambda equals to plus minus अच्छी तो हमें डायरेक्ट इट प्लस माइनस दिस वाला tan alpha into root over of L square plus M square into Z equals to 0 और यूज करी परिबा Lx plus My plus minus Z into root over of L square plus M square into tan alpha equals to 0 चलो proved तो 14 नंबर 15 नंबर है बेसिक किसी डिफरेंस ना एटी हमको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स रे फॉर्मूला यूज करे पड़ला और 14 रे परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करके हमको लैम्बडा ही मिलना देन तुम्हें यूज करिवो इक्वेशन 1 रे यूज करके इजीली तुमको मिल जीवो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन